الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے دلچسپ مکالمہ اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عز و جل پھر ایک سوال اور اس کا عظیم الشان جواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے پہلے حسب معمول درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو جب بھی کسی محفل میں، کسی مجلس میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اس میں مکرم آنے پر ضرور درود پاک پڑھا کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ دیکھیے کہ دنیا اور آخرت کی برکات ملیں گی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا پڑھا ہوا درود پاک بروز قیامت ہمارے لیے انشاءاللہ عز و جل نور ہوگا اور ہماری بخشش و مغفرت کا سامان ہوگا۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعرابی کا 14واں سوال، 14th question آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معزز یعنی زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں، زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ تو خاتم المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے سامنے اللہ پاک کے بارے میں شکوہ و شکایت مت کرو، سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ گے۔ کتنا زبردست فارمولا ہے۔ اللہ پاک کے بارے میں لوگوں سے شکوہ و شکایت مت کرو، سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ گے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا عزیر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ جب بھی کوئی مصیبت نازل ہو تو مخلوق سے اس کی شکایت کرنے سے بچو۔ بہت اہم ٹاپک ہے آج کا، اگر توجہ ہو جائے نا تو یقین مانیے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سیدنا عزیر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف مولا کی طرف سے وحی آتی ہے کہ اے عزیر، جب بھی کوئی مصیبت تم پر نازل ہو تو مخلوق سے اس کی شکایت کرنے سے بچو اور میرے ساتھ اسی طرح معاملہ کرو جس طرح میں کرتا ہوں، کہ جب مجھ تک تیرے خلاف اولا اعمال پہنچتے ہیں تو میں فرشتوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ اسی طرح جب تم پر مصیبت نازل ہو تو میری مخلوق سے میری شکایت نہ کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اندازہ فرمائیے کہ آج ہماری صورتحال کیسی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ پاک جل مجدہ کے بندوں کے سامنے اللہ پاک کی شکایت کرتے ہیں، وہ معاملہ کسی طرح کا بھی ہو، وہ مالی معاملہ ہو، جانی معاملہ ہو، کاروباری معاملہ ہو،
निजी मामला हो, यहां तक कि सर दर्द और बुखार का भी मामला हो, हमारी जबान पर अक्सर शिकवा रहता है, शिकायत रहती है। हम अपने रब तबारक व तआला जल्ल मजदहू की तरफ से आने वाली इन नेमतों, जी हाँ, मैं इसका तस्करा करता हूं आपकी खिदमत में कि जो चीजें हमारे नजदीक माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नहूसतें होती हैं, जिन चीजों को हम बोझ समझते हैं, जो हम पर बड़ी गिरा होती हैं, जो हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे होती हैं, और हम उनके ताल्लुक से जो रवैया इख्तियार करते हैं, बात बेबात, बात बबात, हम वो कलाम करना शुरू कर देते हैं जो दुरुस्त नहीं होता, जो ठीक नहीं होता, जो पसंदीदा नहीं होता, जो रवा नहीं होता। मगर हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है जो आपको शिकवा.net पर जाती नजर आएगी, शिकवा.com पर ही जाती नजर आएगी। बात बात पर जनाबे वाला हाल भी पूछ लेना, हाल, और जनाब क्या हाल है आपकी, फौरन क्या, अरे भाई क्या पूछते हो। तो यानी मतलब किसी ने हाल पूछकर भी माअज़ल्लाह ही सुम्मा माअज़ल्लाह गोया कि हमें शिकायत का मौका फराहम कर दिया, और हम जनाबे वाला फट से अपने रब तबारक व तआला की कि जिसने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, ऐसी बेशुमार नेमतें कि जिनका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, उस मौला की अनमोल नेमतों के मुकाबले में फकत कोई हाल ही पूछ ले तो हमारा बना हुआ मुंह, हमारी टेढ़ी जबान, उससे निकलते हुए तुर्श जुमले अपने मौला की शिकायत बयान करना शुरू कर देते हैं। आइए आपकी खिदमत में इसी लफ्ज शिकायत से एक हिकायत पेश करता हूं। सदरुल शरिया बदरुत तरीका हजरत मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा में सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवाना शमअ रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशाह इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुल्लाहि अल हन्नान की खिदमत में हाजिर हुआ। उन दिनों आपकी तबीयत कुछ नासाज थी। मैं अयादत की नीयत से हाजिर हुआ तो हस्बे मुहावरा पूछा, ये इंडो पाक में मुहावरतन कहा जाता है ना, क्या शिकायत है। डॉक्टर भी पूछता, हाँ जी आपको क्या शिकायत है। तो हम बोलते सर दर्द की शिकायत है, हम बोलते पेट में दर्द की शिकायत है, हम बोलते हैं रात को नींद ना आने की शिकायत। ये हमारा मिजाज है ना, शिकायत का मिजाज। तो आप फरमाते मैंने मुहावरतन इसी तरह पूछा, अब शिकायत का क्या हाल है। सैयदी आला हजरत ने क्या मदनी फूल अता फरमाया, तवज्जो से सुनिए। फरमाया शिकायत किस बात की, अल्लाह पाक से ना तो शिकायत पहले थी ना अब है, बंदे को खुदा से कैसी शिकायत। सदरुल शरिया फरमाते हैं मैंने जिंदगी भर के लिए इस मुहावरे से तौबा कर ली। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वो थे कि जो समझ जाते थे, और एक हम हैं, हमने ना समझने की भी गोया कि माअज़ल्लाह कसम खा रखी है। ये दुरुस्त नहीं है। सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत मौलाना अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप फरमाते हैं अवाम व खवास के ये भी जबान जद है, यानी हर शख्स ये बोलता नजर आता है कि बुखार की शिकायत है, दर्द सर की शिकायत है, जुकाम की शिकायत है, वगैरह वगैरह। ये ना कहना चाहिए, इसलिए कि जुमला अमराज का ज़हूर मिन जानिबिल्लाह होता है, अल्लाह पाक की तरफ से होता है जनाब, तो शिकायत कैसी। मगर मुझे आपसे ये शिकायत है, और मुझे अपने आप से भी यही शिकायत है कि हर वक्त हम शिकायतों ही का तस्किरा करते रहते हैं। मशहूर बुजुर्ग हजरत सैयदना शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप फरमाते हैं जिसने अपनी मुसीबत का किसी से शिकवा किया उसे कभी इबादत की लज्जत नसीब नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तनख्वाह कम है, गुजारा नहीं होता, क्या करूं, किस तरह करूं। शाम की ड्यूटी भी करता हूं, नाइट ड्यूटी भी हो जाती है, हैंड टू माउथ ही रहता हूं। बस यार कुछ करो यार, कुछ दुआ करो यार, कोई जैकपॉट लग जाए यार, कोई ऐसी लॉटरी लग जाए यार, बस यार रात को सोऊं और सुबह उठूं तो बस ऐसी सूरत बन जाए। अरे भाई उस वो क्या करेगा, वो अगला अपना बुखार भी नहीं देता, और आप है कि जनाबे वाला शिकायतों के अंबार उसी से कर रहे हैं। ऐसा ना कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के सदक़े
हमें शिकवा और शिकायत के .net से निकलकर उस पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल की रज़ा पर राजी रहने, उसने मुसीबत अता की है तो उस पर सब्र करने, उसने नेमत अता की है तो उस पर शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। चुनाचे मनकूल है कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत ज्यादा मुहताज हो गए और परेशान हाली ने उनके घर का बसेरा कर लिया। गोया कि ये आज मेरे वतन के लोअर मीडियम क्लास या पुअर क्लास या एक तादाद जो कि बहुत बड़ी है, उन्हीं का हाल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। हमारा क्या हाल है इस पर भी तवज्जो हो जाए और इन बुजुर्ग का क्या मिजाज था जरा इस पर भी गौर फरमाइएगा। बहुत ज्यादा मोहताज हो गए और परेशान हाली ने उनके घर का बसेरा कर लिया। एक रात वो सोए तो ख्वाब में किसी ने कहा, आप हाफिज कुरान भी थे, अल्लाह की शान थी। किसी ने ख्वाब में कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें सूरह हूद, कुरान पाक का एक सूरा है, ये भूल जाए और तुम्हें 1000 दीनार मिल जाए? बोले नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर फरमाया, अगर सूरह यूसुफ भूल जाए और इसके बदले में तुम्हें 1000 दीनार मिल जाए? इन्होंने कहा, हरगिज़ में ये गवारा ना करूंगा। यूं ही 100 सूरतों के बारे में सवालात किए और सबके जवाब में उन्होंने नहीं बोला। कहा, तुम्हारे पास तो 1 लाख दीनार का माल है, तुम्हारे पास तो लाखों दीनार का माल, इतनी बड़ी नेमत तुम्हारे पास है कि कुरान तुम्हारे सीने में, तुम फिर भी मोहताजी का शिकवा करते हो। जब सुबह हुई तो इस ख्वाब की वजह से उनका गम दूर हो चुका था। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे पास क्या है, वो कितनी बड़ी नेमतें हैं जिनका मैं और आप कभी भी इदराक नहीं कर पाते। और सच्ची अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि जब उन नेमतों में से कोई चीज धुंधली होती है, उन नेमतों में से कोई चीज जाती रहती है, उन नेमतों में से खुदा न खास्ता हम किसी चीज से महरूम हो जाते हैं, तो फिर मालूम चलता है, बल्कि एक लफ्ज कहा जाता है, लग पता जाता है कि कितनी बड़ी नेमत से महरूम हुए और कितनी बड़ी अनमोल दौलत से हम महरूम हुए। आपने देखा होगा कि ऑर्थोपेडिक वार्ड में ये जो हड्डियों और जोड़ों का वार्ड होता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई बड़ी उम्र का कोई शख्स अगर वॉशरूम में फिसल जाए या कहीं चलते हुए गीले फर्श पर फिसल जाए और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये हिप्स का जो जॉइंट है वो हिल जाए, और उस वक्त डॉक्टर जब ये कहता है कि आपके हिप का ये जॉइंट जोड़ने के लिए इतनी रकम दरकार है, या ऐसी भी तरकीब होती है कि ये जो हमारा नी जॉइंट है, ये घुटने का जो हड्डी होती है, समटाइम अल्लाह ना करे ये घिस जाता है और वक्त पर ऐसी तरकीब भी बन जाती है कि ये घुटना काम करने की कैफियत में नहीं रहता। और हमने इस घुटने से कितने काम लिए हैं, वो जिंदगी भर कैसे हमारा साथ देता है, कैसे हमारा वजन उठाता है, हमें लेकर चलता है, पूरा बोझ हमारे बदन का उस पर होता है, उसी की वजह से हमारी कितनी तरकीबें बनती हैं। मगर ये हिप जॉइंट, ये नी जॉइंट, ये एंकल जॉइंट, ये आर्म जॉइंट, जब ये किसी तरह भी खुदा ना खास्ता कमजोरी की कैफियत में आते हैं और फिर डॉक्टर जब ये आर्टिफिशियल लगाने के वास्ते हमें बताता है ना कि जनाब इतने 1000 रुपए का खर्चा है, और जब आप फला कंपनी का लेंगे जो ब्रांडेड है, जो जबरदस्त है, जो बेहतरीन है, जो इतना अरसा चलेगी, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, वो इंटरनल बॉडी में लग जाएंगे, तो वो इतने लाख रुपए का है। तो हमें पता चलता है कि एक आर्टिफिशियल चीज इतने लाख रुपए की है और रब्बुल आलमीन जल्ल मजदूर ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें बाय बॉर्न अता फरमा दी, और मैंने और आपने कभी इसकी कदर ना की। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, चश्मा लगाने वालों से पूछिए कि आंखों की कदर क्या है। और अल्लाह ना करे फिर भी खुदा ना खास्ता वो अगर चश्मा लगाने के बावजूद भी अपनी बीनाई को सलामत ना रख पाए, वो दिन ब दिन कमजोरी होती चली जाए, और अल्लाह ना करे वाकई कोई अंखियारा अंधा हो जाए तो उससे पूछिए कि ये आंखों की नेमत क्या है। कोई समात करने वाला अगर एक मर्तबा
बहरा हो जाए और हेयरिंग एड लगा लगा करके फला कंपनी का लगा लीजिए तो फला मल्टी नेशनल कंपनी का लगा लीजिए, वो छोटे छोटे इतने इतने से जनाबे वाला जो हेयरिंग एड होते हैं ना, उनकी कीमत हजारों रुपए में है, लाखों रुपए में बनती है, मगर वो नेचुरल हियरिंग वाली कैफियत में नहीं आती। यू नो वेरी वेल, एक तादाद है जो अच्छी तरह जानती है। अल्लाह ताला रहमत की नजर करे, ये जब गुर्दे खराब होते हैं ना और डायलिसिस के जरिए से जब हम इसकी तरकीब बनाना शुरू करते हैं, ये ट्रांसप्लांटेशन का जो मरहला है, दे आर नॉट इजी जॉब, ये सस्ते नहीं है, मगर अल्लाह ताला की रहमत देखिए, ये ह्यूमन बॉडी खुद सर के बालों से लेकर अब ये सर के बाल ही उड़ जाते हैं, लोग विगे लगाते हैं, विगे जो जितनी अच्छी विग होती है जनाबे वाला उसकी कीमत भी तो उतनी होती है, और हम इन बालों का क्या हशर करते हैं। एक तादाद है जो इन बालों का इतना इकराम भी नहीं करती कि तेल ही लगा लिया करे। कहां लगाते हैं, बालों में तेल भी नहीं लगाते, न जाने क्या क्या करते होंगे। तो फिर वो बाल दिन ब दिन उतरते चले जाते हैं, फिर जनाबे वाला चौदहवीं के चांद की तरह सर हो जाता है, आपके सामने है, यहां पर बाल होते हैं, दरमियान की चमकती हुई खाल होती है आपके सामने। और इस तरह के कितने ही मामला हमने कब कद्र की है। ये उंगलियां, इनकी मूवमेंट, ये खुद कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, पूछिए किसी का अगर किसी थ्रेशर में हाथ आ गया हो, किसी का गन्ने की मशीन में हाथ आ गया हो, इंडस्ट्री में जो काम करते हैं लोग, उसमें अगर किसी का हाथ आ गया हो, वो लुंजा हो गया, पूछो उससे कितनी तकलीफ है। किसी की टांग कट गई हो, पूछो उससे कितनी तकलीफ है। अरे किसी की उंगली भी कट जाए ना तो पूछो उससे। अल्लाह की इतनी सारी नेमत है। ये अक्ल बहुत, जिस्म पूरा सलामत है। ये अक्ल जो बज़ाहिर नजर नहीं आती ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, यार इसका स्क्रू ढीला है, अरे लगता है कोई ऐसा ही, हम या आपस में बातें करते हैं। खुदा की कसम, ये थोड़ा सा वाकई किसी का स्क्रू ढीला हो, जिसकी समझबूझ कमजोर हो, बताओ उसका मुआशरे में स्टेटस है क्या? आप खुद बताइए। तो हमारे पास कितनी मौला की, ये धड़कता दिल, अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक, ये अल्लाह ताला की कितनी अजीम नेमत है, कभी सोचा है? जरा एक एक चीज के बारे में, ये रगो पे, अल्लाह की कसम कितनी बड़ी नेमतें हैं। ये ऑर्थराइटिस के पेशेंट से पूछिए कि ये कितनी बड़ी नेमतें हैं, और यकीन मानिए लोग कितनी तकलीफ में होते हैं। हम खामखा अपनी जबान पर इतनी सारी नेमतों के होने के बावजूद शिकवा और शिकायत की जो सूरतें बनाते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है। और आइए मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी दिलजोई का सामान भी करूंगा। पहले सुनिए कि हम्बलियों के अजीम पेशवा हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपसे किसी ने पूछा कि ऐ अबू अब्दुल्ला आप कैसे हैं? फरमाया खैर व आफियत से हूं। कहने लगा सुना है कल रात आपको बुखार था, तवज्जो कीजिएगा। आपसे पूछा अबू अब्दुल्ला कैसे हैं? आपने फरमाया खैरियत से हूं। कहा सुना है रात को आपको बुखार था। फरमाया जब तुम्हें ये कह चुका कि खैरो आफियत से हूं तो काफी है, जो बात कहना नहीं चाहता वो मत पूछो। क्यों तुम मेरी जबान पर शिकवा जारी करवाना चाहते हो? और इधर तो अगर कोई पूछ ले तो जनाबे वाला उससे हजरत क्या हाल है, अब जनाबे वाला जो फहरिस्त शुरू हो जाए डर करके, इतनी बड़ी फहरिस्त हम बयान करते हैं कि कोई रह ना जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सबको शिकवा और शिकायत की इस आजमाइश से बचाए। और फिर अर्ज करूं आपकी खिदमत में, जिस तरह मैंने अर्ज किया ना, हौसला अफजाई का सामान तो यही कि ये मुसीबतें, ये इम्तिहान, ये आजमाइशें, ये मालों की कमी, ये फलों की कमी, ये सहूलतों की कमी, ये सिर्फ मेरे और आपके साथ थोड़ी है यार। और फिर मैं आपकी खिदमत में दिलजोई का सामान करने के लिए एक हदीस पाक पेश करने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बड़ा लुत्फ आएगा। चुनाचे हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं ताजदार रिसालत शहनशाह नबुव्वत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हाजिर हुआ तो बुखार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकतें लूट रहा था। तवज्जो कीजिएगा, एक एक लफ्ज पर तवज्जो कीजिएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एक कंबल था, कंबल ने हुजूर की खिदमत में हाजिरी दी हुई थी। मैंने कंबल पर हाथ रखकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बुखार कितना तेज है? फरमाया हम ऐसे ही हैं,
ہماری آزمائش سخت ہوتی ہے اور ہمیں دگنا اجر دیا جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کن لوگوں پر ہوتی ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا ہم ہی پر آزمائشیں، ہم ہی رہ گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ کوئی غریبوں پر بھی نظر ہو جائے، اللہ ہم پر بھی کرم ہو جائے، دعا کرنے میں تو یقیناً حرج نہیں ہے، مگر دنیا کو سنانا، دنیا کو بولنا، دنیا کو کہنا، ہر ایک سے اس طرح کے مزاج شکوہ کی کیفیت اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کن لوگوں پر ہوتی ہیں؟ فرمایا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر۔ میں نے عرض کیا پھر کن لوگوں پر؟ فرمایا علماء پر۔ میں نے عرض کیا پھر کن لوگوں پر؟ فرمایا صالحین پر۔ ان میں سے کسی کو جوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، جوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس نیک بندے کو قتل کر دیتی ہے، اور کسی کو فقر و فاقہ کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہننے کے لیے عبا اور چغے کے علاوہ کوئی لباس نہیں پاتا، یعنی اس کے پاس ایک ہی لباس ہوتا ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ آزمائش پر اس قدر خوش ہوتے ہیں جتنا تم عطا پر بھی نہیں ہوتے۔ ملاحظہ فرمائیے، مدنی چینل کے ناظرین، سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر۔ پھر کس پر آتی ہیں؟ شہداء پر۔ پھر کس پر آتی ہیں؟ صالحین پر۔ پھر کس پر آتی ہیں؟ تو اب جو مقام و مرتبے میں جتنا بڑا ہے، یقیناً آزمائشوں میں وہ اتنا ہی لائن میں کھڑا ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے نا۔ مگر مومن کا مزاج کیسا ہونا چاہیے کہ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اے کاش کہ واقعی ہم غموں کو، مصیبتوں کو، امتحانوں کو، آزمائشوں کو اللہ کی رضا جانیں، ان مصیبتوں پر صبر کریں، کہ مصیبتوں پر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو مصیبت میں مبتلا ہونا یہ کوئی آپ یوں نہ سمجھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمیں جناب والا چھوڑ دیا گیا ہے، ہمیں پوچھا نہیں جاتا ہے، جن کو دیا ہوا ہے انہی کو دیا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو خام خوابی جسے کہتے ہیں نا، وہ بس وہ کڑتی رہتی ہے، ہمیں کچھ نہیں ملا، ہم غریب رہ گئے، ہم مسکین رہ گئے، ہم یتیم رہ گئے، ہم اسیر رہ گئے، ہم کیوں ایسی کیفیت میں ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے، سونے کو نہیں ہے، ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے، انہی کیفیتوں میں رہتی ہے۔ یقین مانیے اللہ مجھے بھی نصیب کرے اور میرے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی نصیب کرے۔ اپنے مولا کی رضا پر راضی رہیے، شکووں کو چھوڑیے۔ دیکھیے انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ملیں گی، دنیا اور آخرت میں اس کا اتنا بڑا انعام ملے گا کہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن شہید کو لا کر حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ کس کو؟ شہید کو۔ اب شہید یہ کتنی مصیبت میں ہوتا ہے، مطلب شہادت تو سعادت ہے نا، مگر یہ شہید ہونے کے لیے مطلب ایسا تھوڑی کہ جناب والا کوئی مسکراتا آ جائے گا۔ تیر سے، تلوار سے، بھالوں سے، بچھیوں سے، توپوں کے آگے، اللہ اکبر کبیرہ، چٹانوں پر، پہاڑوں پر، ریگستانوں میں کیسی کیسی آزمائشیں ہیں۔ شہید ہونا آسان تو نہیں، مگر جب شہادت ملتی ہے تو عظیم سعادت ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن شہید کو لا کر حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والوں کو لایا جائے گا اور حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، پھر مصیبت زدہ لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کے لیے نہ تو میزان نصب کیا جائے گا اور نہ ہی ان کا اعمال نامہ کھولا جائے گا، پھر ان پر اجر نچھاور کیا جائے گا۔ تو موقف میں موجود دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے لوگ اللہ پاک کے دیے ہوئے اس ثواب کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم قینچیوں سے کاٹے جاتے۔
शहीदों को कैसा इनाम मिलेगा। आसान नहीं है शहादत। हाँ, और अल्लाह ताला रहमत की नजर करे सदका करने वाले, जो यकीनन इंसान का दिल नहीं चाहता, नफ्स बहुत ज्यादा इंसान को रोकता है, मगर ये अल्लाह की राह में देते हैं और जी खोल कर देते हैं और जी खोल कर देते हैं और जी खोल कर देते हैं ऐसों को। और फिर जो मुसीबत ज़दा लोग हैं कि जिनको रहने को मकान नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और कोई बुनियादी जरूरत नहीं है, कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। अफोर्ड करने वाले तो बहुत कुछ अफोर्ड करते हैं, मगर गरीब आबादियों में रहने वाले अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कदम कदम पर कसम पुरसी, कदम कदम पर उनके यहाँ गुर्बत, ये हर तरह से डेरे डाले हुए होती है। सब्र कीजिए ऐ मेरे इस्लामी भाई, सब्र कर। ए इस्लामी बहन, सब्र कर, हिम्मत रख, अल्लाह के हुजूर शिकवा ना कर, शिकायत ना कर। खुदा की कसम ये सब्र करेगी तो कल बरोज़े क़ियामत ना तेरे लिए मीज़ान लगेगा, न तुझसे आमाल नामा खोला जाएगा, बल्कि रब्बे करीम बतुफ़ैल मुस्तफ़ा करीम अज्र के पैमाने भर भर के अता फरमाएगा। और फिर जो सहूलतों वाले हैं, हाँ जी, जो दुनिया में सहूलतों वाले हैं, फैसिलिटीज वाले हैं, खुशबाश लोग हैं, वो जब ये अज्र के पैमाने भर भर के देखेंगे ना तो क्या कहेंगे, काश दुनिया में हमारे वजूद को कैंचियों से काटा जाता। तो शिकवा नहीं करना, शिकायत नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं करना। अच्छा, एक तादाद वो भी होती है, कोई आजमाइश नहीं होती, मगर उनका गमगीन रहने कोई दिल चाहता है, बस उनका दिल चाहता है मुंह बना रहे, उनका दिल चाहता है बस कोई भी ऐसी बात ना करो, बस जनाब क्या बोलते हो, क्या पूछते हो, हर वक्त जैसे नहीं बीमार ही रहेंगे, हर वक्त जैसे मुफलिसी की शिकायत ही करेंगे, हर वक्त जनाबे वाला मुंह बना रहेगा। ये भी एक मिजाज होता है, ये भी दुरुस्त नहीं। अल्लाह की नेमतों का तस्किरा किया करें, मौला ने अता किया है इस पर शुक्र किया करें, और नहीं मिला तो वो परवरदिगार खूब जानता है, देने वाला भी वही है और रोकने वाला भी वही है। उसकी जनाब में रुजू कीजिए। सैयदा ज़हरा और मौला अली की जरा तारीख तो पढ़िए, हसनैन करीमैन की जरा तारीख तो पढ़िए, खुद मुस्तफ़ा करीम के अहले खाना की तारीख तो पढ़िए, अहले बैटे पाके मुस्तफ़ा की शान और शौकत तो पढ़िए। मालूम चलेगा कि किस तरह से दिन गुजारे थे, कि थोड़ी खजूरे ही खा लेना, फिर पानी पीकर रह जाना, 2-2 महीने यूं ही गुजारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने कपड़े खुद धो लेना, नाले पाक भी खुद सी लेना, सादा है उम्मत के यावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाना तो देखो जौ की रोटी, बेचना आटा रोटी भी मोटी, वो भी शिकम भर रोज न खाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये थे मेरे मुस्तफ़ा, दो आलम के दाता, कौनैन के ताजदार, नबियों के सरदार, कायनात की तमाम खजानों की चाबियां जिनके हाथ में हैं, मगर बज़ाहिर हाथ खाली है। और उनके अहले बैत का भी यही आलम है। अल्लाह के अंबिया, अल्लाह के औलिया, इनकी तादाद है जो ऐसी कैफियत में है। ना कीजिए, नियत करते हैं आइंदा शिकवा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले सिलसिले में।